Good evening, everyone. Please put your attendance in the chat box. I don't know the reason, but very few students have joined. So we will wait for 1 or 2 minutes. Till then, you please put your attendance in the chat box. Everyone, along with your standard. Okay. Okay. आकांक्षा गायकवाड़ नाम से जो लॉगिन हुए हैं और संदीप वर्गेस नाम से जो लॉगिन हुए हैं, वो लोग भी अपनी अटेंडेंस डाल दीजिए. प्लीज पुट योर अटेंडेंस एवरीवन इन द चैट बॉक्स. आकांक्षा गायकवाड़, please put your attendance. Okay. Sandeep Varghese sir, Avdut, okay. Along with your standard. ठीक है. So we have enough people now, so that we can start. Okay. So I hope my voice is audible to you clearly. Okay. So I'm presenting my screen. Here we go. I think it is visible now. Okay. So कुछ क्वेश्चंस है जो पिछले क्लास से बाकी थे. ओके. हमारा लास्ट क्लास जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसकी वजह से 2 क्वेश्चंस थे जो कि बाकी है. So we will complete those 2 questions first, and then we will start our new topic. Okay. So the question is, question क्या है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो टॉपिक था दैट वाज डायरेक्शन सेंस. ओके. सो डायरेक्शन सेंस के जो बेसिक्स है आप लोगों को पता है, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ. एंड आई एम डायरेक्टली टेकिंग द 12th क्वेश्चन. ओके. सो आई विल जस्ट full do this in full screen. Just give me a few minutes. Okay, so this is our question. Okay, this is second last question that we will trying to solve. So see, इसको किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है. So a person X was driving in a place where all roads ran either north south or east west, forming a grid. Roads are at a distance of 1 kilometer from each other in parallel. He started at the intersection of two roads, drove 3 kilometers north, 3 kilometers west, and 4 kilometers south. Which further routes could bring him back to his starting point if same route is not repeated. Okay. So first of all, we have to draw that grid. Okay. So let me just draw the grid. This is first path, second path, third one. Okay, I'll just draw closer. Second, third, fourth and fifth. सो कंसीडर कीजिए कि ये जो सारे पाथ है वो पैरेलल है. ओके. मैंने एग्जैक्टली पैरेलल तो नहीं ड्रॉ किए, लेकिन आप लोग समझ के चलिए. सो दिस इज अनदर वर्टिकल पाथ. और इन इन दोनों कोई भी दो जो पाथ है उनमें से जो डिस्टेंस है उन दोनों में, वो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का. ये भी हमको पकड़ के चलना है. ओके.
So ये मैंने ग्रिड एक फॉर्म कर दिया पाथ का. ओके, सो या आई नीड द पेंसिल हियर. सो मान लीजिए कि उस पर्सन ने यहाँ से शुरुआत की. ओके, ही स्टार्टेड फ्रॉम हियर. जस्ट चेंज द कलर. ओके, सी. सो उस पर्सन ने यहाँ से शुरू किया मान के पकड़ते हैं. ओके, सो फर्स्ट he drove 3 kilometers north. So see, 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. 3 kilometer north यानी कि वो पर्सन यहाँ पे आया. Then he drove 3 kilometer west. So 1 2 3 यानी कि वो यहाँ पे आया. And 4 kilometer south यानी कि 1 2 3 and 4 kilometer south यानी कि वो अभी यहाँ पे आया है. That person has come here and he wants to return to the its starting point. Okay, सो उसको कौन सा राउट चूज करना पड़ेगा, इसके लिए हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं. सी, सो दीज आर द ऑप्शंस. सो प्लीज टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन बाय लुकिंग एट द फिगर. सॉरी, सी, these are the options and please tell me B is the correct option. correct. So उसको 3 किलोमीटर ईस्ट जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर ईस्ट जाना पड़ेगा और 1 किलोमीटर उसको नॉर्थ जाना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द we can say option he have. Now let's come to the last question from that topic. ये last question है. A person climbs a hill in a straight path from point O on the ground in the direction to the direction of northeast and reaches a point A after traveling a distance of 5 kilometers. Then from point A he moves to point B in the direction of northwest. Let the distance AB be 12 kilometers. Now how far is he how far is the person away from the starting point? So see, यहाँ पे अगर मैं फिर से इसे ड्रॉ करने लग जाऊं तो वो यहाँ पे एक ग्राउंड पे ओ पॉइंट पे है. दिस इज अ पॉइंट ओ. ओके, देन ही ट्रेवल्ड ऑन अ हिल दैट विच इज इन अ नॉर्थ ईस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में. तो कितने किलोमीटर उसने ड्राइव किया? 5 किलोमीटर. ओके, आफ्टर दैट देन फ्रॉम पॉइंट ए, सो दिस इज अ पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट ए he went to the direction northwest to a point B. So northwest is this direction. Okay, northwest is the direction, this direction, and this is a point B. So ये जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर से ऐसे हम पकड़ के चलते हैं. ओके, सो ये थोड़ा सा 5 कम लग रहा है, सॉरी 12 कम लग रहा है, 5 ज्यादा लग रहा है, लेकिन समझ के चलिए कि ये 12 है और ये 5 है. सो व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, दे आर आस्किंग दैट हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओ. मतलब यहाँ से वो कितना दूर है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. सो वी कैन अगेन यूज हियर द पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस इज अ 90 डिग्री एंगल. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है 144, इसका स्क्वायर होता है 25. सो इट इज गोइंग टू बी 169. सो 169 का स्क्वायर रूट जो है वो होता है 13. ओके, सो डिस्टेंस ओ बी विल बी 13, जो कि ऑप्शन में दिया है. दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, so B option is correct. So with this example, our this particular chapter or the topic is finished. So we will start the new chapter. Okay, so let me just close this window and here we have a new topic. So this topic is time and distance. Time and distance की भी लगभग 2 क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम में. ओके, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो होते ही है. And this is very easy topic, like all other topics. So we will see few basics of this, few basic examples, and then we will solve few examples from UPSC paper itself. So these are few formulas that will be useful for you while solving these type of questions. So please take a screenshot or write it down. Speed is equals to distance by time is the formula, and if you have given distance in kilometer or let us say speed in kilometer per hour, अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और आपको मीटर पर सेकंड में अगर उसे कन्वर्ट करना है
So you can convert with the help of these two formulas. Okay, x kilometer per hour is equals to x multiplied by 5/18 meters per second. देखिए हमें दिया किस में है, किलोमीटर में है, कन्वर्ट किस में करना है, मीटर्स में करना है. सो कई बार हम कंफ्यूज किस चीज में होते हैं कि 5/18 लिखना है या फिर 18/5 लिखना है, 5/18 या 18/5. तो हमें कन्वर्ट किस में करना है, मीटर्स में करना है. मीटर्स इज स्मॉलर क्वांटिटी देन किलोमीटर. सो 5 इज स्मॉलर देन 18, तो 5 ऊपर आएगा. इस तरह से हमें ध्यान रखना है. ओके, सो x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. ये कन्वर्जन की हमें जरूरत पड़ेगी. सिमिलरली अगर मीटर पर सेकेंड में दिया है तो वी विल मल्टीप्लाई दैट वैल्यू विथ 18/5 सो दैट वी विल गेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर पर आवर. ओके, और 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है. 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स होता है. ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए. ओके, सो एवरीवन प्लीज आइदर टेक द स्क्रीनशॉट or I think you have written it. Okay, so let's take the example without wasting time. A man walking at a rate of 5 kilometer per hour crosses a bridge in 15 minutes. The length of the bridge in meters is. So this is very basic question, very easy question. Try to solve it. इसमें क्या क्या दिया है ये समझ लीजिए. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला हमें यूज करना है. सो स्पीड क्या है, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर दी है स्पीड. डिस्टेंस हमें निकालना है, लेंथ या फिर डिस्टेंस, और टाइम भी यहाँ पे दिया है. ओके, सो आई विल जस्ट, sorry, this is our presentation and this is the drawing board. Okay, see, तो क्या करना है हमें, see what formula we have, speed is equals to distance by time. ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि यूनिट के कन्वर्जन से. डी इज द ऑप्शन प्रेरणा हैज गिवन. ओके, सो या डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो जब जब कभी भी पॉसिबल हो, अगर वैल्यूज छोटे हैं ना, तो हमको फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है, बिकॉज इन दैट केस द फॉर्मूला मेथड इज लेंथी. कैसे, देखिए, अगर वो पर्सन 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, सो 1 घंटे में वो कितना जाएगा, 1 घंटे में वो जाएगा 5 किलोमीटर, बराबर. हाफ आवर में वो कितना जाएगा, 2.5 किलोमीटर. सिमिलरली अगर हाफ आवर में वो 2.5 किलोमीटर जा रहा है, सो वो 15 मिनट में कितना जाएगा, 1.25 किलोमीटर. करेक्ट, 1.25 किलोमीटर. सो 1.25 किलोमीटर यानी कि 1250 मीटर्स होता है. सो दिस कन्वर्जन हमें, ये कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए. ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है. बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक एग्जांपल है. आगे के एग्जांपल थोड़े से हार्ड रहेंगे, डिफिकल्टी लेवल हार्ड रहेगी. सो एक बार सब लोग बता दीजिए मुझे कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, देन विल सी. ओके, चलो ठीक है. ओके, सब लोग रिस्पॉन्स दीजिए जल्दी जल्दी. सो इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हैं. ठीक है, चलो. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, वेरी गुड, थैंक यू. अ person travels equal distances with the speed of 3 kilometer per hour, 4 kilometer per hour, 5 kilometer per hour and takes a total time of 47 minutes. The total distance in kilometers is. So यहाँ पे हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स यूज करने हैं. ओके, सो दिस इज क्वाइट हार्ड क्वेश्चन. सो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड. तो दिया क्या क्या है कि अ पर्सन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब डिस्टेंस जो है वो सेम ही है. ओके, सो आई विल कंसिडर दैट डिस्टेंस एज अ लेट अस से x is the distance. Okay, x distance. So he travels with the speeds of 3 kilometer per hour, 5 kilometer per hour and sorry, yes, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर. और उसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना लगा टाइम, 47 मिनट्स लगे. ठीक है, अब वो 47 मिनट्स को अगर हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, देखिए यहाँ पे यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए. स्पीड उसकी हमें किलोमीटर पर आवर में दी है, तो टाइम भी आवर में ही होना चाहिए. ओके, अगर स्पीड मीटर्स में है तो टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए. यूनिट शुड बी सेम. So x kilometer divided by 3, so that is going to be time, some time in hour.
ठीक है। एक्स इज द डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस उसने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। सेम डिस्टेंस उसने कवर किया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वही सेम डिस्टेंस उसने कवर किया 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। लेकिन उसको ये सब जर्नी में कितने टाइम लगा? 47। ये मिनट्स लगे, आवर्स में। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 60 मिनट्स है, तो मुझे इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 60 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? 1 आवर। मतलब मिनट्स को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? आवर में वो टाइम कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा यहाँ पे? 47 डिवाइडेड बाई 60 कर दूंगा। ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई एक्सप्रेशन। अभी ये एक्सप्रेशन किस किस को नहीं समझ में आया वो लोग मुझे बताइए। अगर सबको समझ में आया तो यस लिखिए ताकि हम आंसर निकाल पाए। ओके, चलिए बताइए। यस, ओके, प्रेरणा, गुड, ठीक है। तनुज, तनुश्री, ओके, राहुल, राजवीर, संकल्प, गुड, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। सो हम क्या कर सकते हैं? इसका हमें हम्म, इसका हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, बराबर। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। मतलब ये 4x + 3x बनेगा 7x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू रहेगा, सॉरी, +x + 5 रहेगा ना, इज इक्वल्स टू रहेगा, ओके, मुक्ता हैज फाउंड द आंसर, दैट इज 3 किलोमीटर। ओके, विल सी, या 47/60, करेक्ट। सो अगर फिर से इसे मैं सेम करता हूँ इसका डिनोमिनेटर, इसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से, और इसे 5 से। 7 5 35x प्लस ये 12x मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 12x डिवाइडेड बाय, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, दैट इज 60, दैट इज गोइंग टू बी 47/60। ओके, सो ये क्या हुआ? 47/60 इज इक्वल 47/60 एक्स इज इक्वल टू 47/60 हुआ। एक्स की वैल्यू क्या आई? एक्स की वैल्यू आई 1। ओके, एक्स की वैल्यू 1 आई। तो उसने डिस्टेंस 3 बार पार किया है ना, मतलब एक्स डिस्टेंस किया 3 किलोमीटर से, दूसरा एक्स किया 4 किलोमीटर पर किलोमीटर के आवर से, और पांचवा डिस्टेंस जो है वो किया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब उसने 3x डिस्टेंस पार किया है। एक्स की वैल्यू आई 1। एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3। 3 किलोमीटर इज द आंसर। ओके, 3 kilometers is the answer. Okay, so let's take the next example. Sorry. Okay. So this example is from UPSC 2014. A worker reaches his factory 3 minutes late if he speeds from his house to the factory. If his speed from his house to the factory is 5 km per hour, if he walks at the speed of 6 km per hour, then he reaches 7 minutes early. The distance of the factory from his house is, तो देखिए, अगर वो 5 km/h से जाता है तो उसे 3 मिनट लेट हो जाता है फैक्ट्री में पहुंचने के लिए। अगर वो 6 km/h जाता है तो उससे 7 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है। डिस्टेंस तो सेम ही है फैक्ट्री का घर से, वो सिर्फ क्या कर रहा है? वो सिर्फ स्पीड चेंज कर रहा है, तो उसका जो पहुंचने का टाइम है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, हाउ वी कैन राइट इट। लेट अस सपोज, सी, उसके घर से फैक्ट्री का डिस्टेंस मान के चलिए है एक्स। एक्स डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि वो 5 km/h की स्पीड से एक्स डिस्टेंस जा रहा है। ओके, तो वो टाइम से कितना कितना जल्दी पहुंच रहा है? 3 मिनट, सॉरी, टाइम से 3 मिनट लेट पहुंच रहा है, बराबर। वो टाइम से 3 मिनट लेट पहुंच रहा है। मैं यहाँ पे 3 माइनस, सॉरी, -3/60 लिख दूंगा, और x डिवाइडेड बाय 6, मतलब कि अगर वो 6 km/h की स्पीड से जाएगा उसी डिस्टेंस को, तो वो 7 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। मतलब उसके पास 7 मिनट एक्स्ट्रा बच रहे हैं, और यहाँ पे 3 मिनट्स कम पड़ रहे हैं टाइम में। दोनों का अभी ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, दैट इज
डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम होगा, यहाँ पे भी डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम होगा। सो ये टाइम सेम ही है, मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, टाइम तो फिक्स ही रहेगा ना। मान लीजिए कि उसे अगर 12 बजे पहुंचना है, सो इट हैज टू बी कांस्टेंट, ठीक है। सो बोथ द साइड्स कैन बी इक्वेटेड, मतलब दोनों साइड को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। 5 किलोमीटर की स्पीड से वो जा रहा है तो 3 मिनट लेट हो रहा है, और अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 7 मिनट्स वो जल्दी पहुंच रहा है। सो इस तरह से मैंने एक फॉर्मूला बना लिया। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए क्या आएगा आपका आंसर। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फैक्ट्री, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिर्फ। यहाँ पे 7/10 नहीं है, हाँ, यहाँ पे 7/60 होना चाहिए। ट्राई टू सॉल्व दिस, कीजिए सॉल्व। सी, ओके, सी आया किसी का ऑप्शन, प्रेरणा का ऑप्शन सी आया। ओके, बाकी लोग ट्राई कीजिए। मुक्ता का भी आंसर सी आया है। 5 किलोमीटर तनुश्री, ओके। राजवीर जी ट्राई कीजिए। राहुल, अवधूत, आकांक्षा, अजय, आप लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये तो करना है। देखिए, ठीक है, ओके, चलो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज उसका फैक्ट्री, उसके घर से फैक्ट्री का डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर का है। ओके, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज पुट यस, देन वी विल मूव। ओके गुड, ठीक है। सो टू कार्स स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर from two places A and B, which are at a distance of 160 kilometer. They start at the same time, that is 8:30 a.m. If the speed of the cars are 50 kilometer and 30 kilometer per hour respectively, they will meet each other at. So this is the question from UPSC 2014. ठीक है, सो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, तब तक मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने आपको जैसे कि बोला कि आपको जब तक हो सकता है तब तक आपको फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है। ओके, सो ट्राई टू ड्रॉ, सी टू कार्ड्स स्टार्ट फ्रॉम टू पॉइंट्स और टू प्लेसेस, दैट इज ए एंड बी। सो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए इज हेयर, बी इज हेयर। ओके, सो दे स्टार्ट एट द सेम टाइम पे वो शुरू हुई, दैट इज 8:30 a.m. को। वो सुबह 8:30 बजे शुरू हुए, यहाँ से भी कार शुरू हुई, यहाँ से भी एक कार शुरू हुई। पहली कार का, जो कार ए पॉइंट से शुरू हुई है, उसका जो स्पीड है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर आ रही है। सो वो एक दूसरे को कब मिलेंगे। मान लीजिए 1 आवर होता है, दिस इज 160 किलोमीटर, हाँ, एक 160 किलोमीटर। सो 1 घंटे के बाद ये रहेगी 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से, और सेम 1 घंटे में ये रहेगी 30 किलोमीटर यहाँ से। ओके, सो मान लीजिए 50 और 30 होता है 80 किलोमीटर। सो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा, अभी भी 1 घंटे बाद डिस्टेंस कितना बचा, 80 किलोमीटर बचा। ओके, 80 किलोमीटर डिस्टेंस अभी भी उसको कवर करना है। तो नेक्स्ट 1 घंटे में, नेक्स्ट 1 आवर में क्या करेगा, ये 50 किलोमीटर कवर करेगा, ये कार 50 किलोमीटर कवर करेगी, और ये कार 30 किलोमीटर कवर करेगी, यानी कि वो 2 घंटे बाद मिलेंगे। 2 आवर्स लेटर दे विल मीट इच अदर, बराबर। सो 8:30 बजे अगर वो निकले हैं, सो 10:30 बजे वो एक दूसरे को मिलने चाहिए, 2 आवर्स बाद, 2 आवर्स लेटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके, चलो, अगर कोई डाउट है तो पूछिए सब लोग। ओके, so let's go to the third next question. In a 500-meter race, B starts 45 meters ahead of A, but A wins the race while B is still 35 meters behind.
what is the ratio of the speeds of A and B assuming that both start at the same time. So ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक 500 मीटर की रेस है, दो बंदे उसमें भाग रहे हैं, ठीक है, और बी जो बंदा है, बी स्टार्ट 45 किलोमीटर अहेड, मतलब कि बी ने 45 किलोमीटर पहले ही वो ट्रेवल कर चुका है, और अभी वहां पे वो खड़ा है, और ए और बी अभी दोनों एक साथ शुरू करेंगे भागना। ओके, सो एट द एंड ऑफ रेस क्या होता है कि बी को चेक पॉइंट पे या फिर फिनिश लाइन पे पहुंचने के लिए 35 मीटर्स और कवर करना है, जबकि ए पहुंच भी गया है। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ए एंड बी, स्पीड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। सो ये किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो। ओके, सो सी दिस इज अ 500 मीटर ट्रैक, ठीक है, यहाँ पे ए भाग रहा है और यहाँ पे लेट अस सपोज बी भाग रहा है, ठीक है। सो बी जो है, बोथ द ट्रैक्स आर 500 मीटर्स, हाँ, समझ के चलिए। बी जो है वो ऑलरेडी 45 मीटर पे है, ठीक है, एंड अभी दोनों ने भागना शुरू कर दिया। अभी ए यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे पहुंच भी गया, लेकिन बी अभी फिलहाल कहाँ पे है, 35 मीटर पे है, मतलब 35 मीटर उसे और ट्रेवल करना पड़ेगा पहुंचने के लिए। सो देखिए, दोनों ने सही, मतलब दोनों ने सेम समय पे शुरू किया था दौड़ना, और दोनों ने सेम समय पे खत्म तो नहीं कर रहे, लेकिन जब खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ, तब ए पहुंच चुका था और बी जो है वो 35 मीटर्स पहले ही यहाँ पे था। ओके, सो एक्चुअल में सेम ड्यूरेशन में ए ने कितना डिस्टेंस पार किया, ए ने कितना डिस्टेंस पार किया, 500 मीटर्स पार किया, बराबर। उसी सेम ड्यूरेशन में बी ने कितना डिस्टेंस पार किया, देखिए 45 तो वो पहले ही जा चुका था और 35 जाना बाकी है, मतलब 45 + 30 कितना बनता है, 80 बनता है। सो 80 मीटर्स उसने कम ट्रेवल किया। सो बी ने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सॉरी, इट शुड बी 420 मीटर्स। समझ रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो, सब लोग बताइए, कंफ्यूजिंग तो नहीं है? ओके, ठीक है, सब लोग रिस्पॉन्ड दीजिए। ओके, ओके, संकल्प एंड प्रेरणा आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, वी विल आई विल रिपीट इट, सी। ओके, प्रेरणा को समझ में भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन आंसर भी दे दिया, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, अंडरस्टूड, ओके, 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 सॉरी, सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी, ठीक है। सो ए ने डिस्टेंस पार किया 500 मीटर्स, बी ने डिस्टेंस पार किया 420 मीटर्स। सो रेशो निकालिए, ए टू बी का रेशो का क्या आएगा, क्या आएगा, ये 0 0 कट हुआ, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 डिवाइडेड बाय 21। So this is the answer, that is option A is correct option for this question. Okay, चलिए, so let's go to the next question. Two cities A and B are 360 kilometers apart. A car goes from A to B with the speed of 40 kilometers per hour and returns to A with the speed of 60 kilometers per hour. So what is the average speed of the car? So try to solve this. I will give you the time of 2 minutes. Try कीजिए। C, okay. C is the option given by Tanushri. एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो फिर से रीड कीजिए। ओके, यस यस यस, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, टेक योर टाइम। Solve it, everyone solve it, try it.
एटलीस्ट ट्राई कीजिए, फिर से सोचिए। तनुश्री फिर से एक बार ट्राई करो। यस। बाकी लोग ट्राई कर रहे हो ना? राजवीर, राहुल, अवधूत, आर यू ट्राइंग और नॉट? आकांक्षा, अजय? Yes, yes. Please try. Okay. Sankalp is saying B is the option. That is 48 kilometer per hour. Okay. How it can be? ठीक है, चलिए। सो बी इज द ऑप्शन। ठीक है। सो किस तरह से आता है एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट हियर। सी, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 160, सॉरी 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये रहा ए और ये रहा बी। सो एक कार जा कितने किलोमीटर पर आवर से रही है? 40 किलोमीटर पर आवर से कार जा रही है, बराबर। सो उसे जाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे? हाउ मेनी आवर्स विल दैट कार रिक्वायर टू रीच फ्रॉम ए टू बी? 9 आवर्स, बराबर। 40 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 40 इज 9 आवर्स। सो 9 आवर्स उसे जाने के लिए लगे उस कार को। उस कार को फिर से वापस भी तो आना है ए पे, ए डेस्टिनेशन पे। सो जब वो ए की तरफ आ रही है, सो दैट इज कमिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सो आने के लिए उसे कितना टाइम लगा? 6 आवर्स लगा, बराबर। सो टोटल जर्नी कितने आवर्स की हुई उसकी? 15 आवर्स की हुई, बराबर। और उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 360 किलोमीटर जाते वक्त, देखिए 360 किलोमीटर गई वो कार, और 360 किलोमीटर फिर से वापस आई। दैट मीन्स 720 किलोमीटर की उसने जर्नी की। सो 720 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 आवर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड मिलेगी। एवरेज स्पीड मिलेगी। सो इट इज गोइंग टू बी 48 किलोमीटर पर आवर। डिवीजन करके देखिए, 720/15 का डिवीजन अगर करेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डोंट बी सॉरी धनुश्री, यू गॉट इट सेकंड टाइम, राइट? ओके, okay. Now a freight train left Delhi for Mumbai at an average speed of 40 km per hour. 2 hours later, an express train left Delhi for Mumbai following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 kilometers per hour. How far from Delhi would the express train meet the freight train? Now देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। सी, ये भी हमें ड्रॉ ही कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। सो अ फ्रेट ट्रेन फॉर लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेट ट्रेन जो है उसके लिए मैं नाम दूंगा एफ। उसका जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। वो निकल गई है दिल्ली से। ओके, सो दिल्ली से निकल गई है, एंड 2 आवर्स लेटर एक एक्सप्रेस ट्रेन वो भी दिल्ली के लिए निकल रही है। ठीक है, दिस इज अ फ्रेट ट्रेन एंड दिस इज अ एक्सप्रेस ट्रेन। सो फ्रेट ट्रेन पहले निकल चुकी है, 2 आवर वो चली है, तो इसका मतलब वो कितना किलोमीटर जा चुकी होगी? इट विल बी गॉन 80 किलोमीटर्स। ठीक है, जबकि ये ट्रेन जो है ये यहाँ से निकली भी नहीं है। एक्सप्रेस ट्रेन निकली भी नहीं है, लेकिन फ्रेट ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पहुंच चुकी है। अभी फ्रेट ट्रेन का जो स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट 60 किलोमीटर्स देखो, नेक्स्ट आवर में मतलब तीसरे आवर में क्या होगा कि ये जो ट्रेन है वो कितना किलोमीटर जाएगी? 120 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर पर आवर है ना। तब एक आवर में ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पहुंचेगी, बराबर। सिमिलरली अगर वो फिर से 1 घंटा हम चले तो वो कितना पहुंचेगी? 160 किलोमीटर पहुंचेगी ये ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। सी इज द ऑप्शन। ओके, विल सी। ये ट्रेन जो है एक्सप्रेस ट्रेन वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, मतलब कि 120 किलोमीटर जाएगी। सिमिलरली फिर से 1 घंटा चले हम, 1 घंटा चलने के बाद में ये ट्रेन गई 200 किलोमीटर, बराबर।
और ये ट्रेन गई कितना 180 किलोमीटर्स, क्योंकि ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। एंड एट लास्ट 1 घंटा और चलने के बाद में ये ट्रेन जाएगी 240 किलोमीटर्स, और ये ट्रेन 60 किलोमीटर और चली जाएगी, यानी कि ये ट्रेन भी कितना किलोमीटर जाएगी 240 किलोमीटर्स, यानी कि दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर वो ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगी। ओके, द बोथ ट्रेन्स विल मीट 240 kilometers from Delhi. Okay, so option C is the correct 240 kilometers. ठीक है एवरीवन, बताइए, आर वी गुड? समझ में आया? यस, जिनको समझ में आया वो यस लिखिए, जिनको नहीं समझ में आया वो नो लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, read the question. A train 200 meter in length is traveling at a speed of 40 kilometer per hour. How long the train will take to cross a person standing beside the railway line? So अभी इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, देखो इस एग्जांपल में हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है कि ये जो ट्रेन है ये एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। सो उस पर्सन की जो लेंथ है या फिर हम डिस्टेंस है उसे जीरो मान के चलेंगे, मतलब कि उसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। सो एक्चुअल में हमें क्या करना है कि वो ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 मीटर का जो डिस्टेंस है या फिर लेंथ है वो कितने समय में पार करेगी वो हमें निकालना है। समझ रहे हो, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है मीटर्स में और स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में। So what we have to do, we have to convert the speed into meters per second first, and then we can calculate the what we can say time. Okay, so see how we can calculate this. Okay, see 200 मीटर इज द लेंथ। अभी 200 मीटर को हम एज इट इज भी रख सकते हैं या फिर हम 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हम ये कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शंस है वो सारे सेकेंड्स में दिए हुए हैं, बराबर। तो देखिए 40 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सो 40 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, करेक्ट। सो सी 40 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 दैट विल बी मीटर पर सेकेंड, ये डिस्टेंस हुआ मीटर पर सेकेंड में, ऑप्शन डी। ओके, ठीक है। सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 बिकम्स 200। Okay, 40 multiplied by 5 becomes 200, and 200 divided by 18, we will see 200 divided by 18 कितना आया 11.11, 11.11, that is recurring. So जो स्पीड है हमारा that is 11.11 मीटर पर सेकेंड्स। सो अभी हमारे पास लेंथ दी है, लेंथ कितनी है 200 मीटर है। अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करें, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करें दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 11.11, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट द टाइम इन सेकेंड्स। सी डिस्टेंस इज इन मीटर्स, ये मीटर्स में है और ये भी मीटर पर सेकेंड में है। सो मीटर मीटर कट जाएगा, टाइम बचेगा सेकेंड्स में। तो अगर हम करते हैं 200 divided by 11, so that is 18.18 recurring, or we can say 18 second. Okay, 18 second हम पकड़ सकते हैं। So option D is the correct option. Okay, option D is the correct option. This is how we calculate. अगर आपको अल्टरनेटिव वे यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे मीटर को जो है मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं 0.2 किलोमीटर्स, 0.2 किलोमीटर्स। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा कि 0.2 किलोमीटर डिवाइड बाय 40 करेंगे तो वो जो डिस्टेंस आएगा, सॉरी वो जो टाइम आएगा वो फिर से आवर्स में आ जाएगा।
तो फिर से आपको आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट इज क्वाइट लेंथी। तो इससे अच्छा है कि ये मेथड आप यूज करें। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is two persons A and B are running on a circular track. At the start, B is ahead of A and their position make an angle of 30 degree at the center of the circle. When A reaches the point diametrically opposite to his starting point, he meets B. What is the ratio of speeds of A and B if they are running with the uniform speed? ठीक है, सो इसके लिए हमें पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है या फिर क्या पूछा गया है। ठीक है, सो उसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सॉरी, या ओके, जस्ट वेट, या सो वो जो दो पर्सन है ए एंड बी, दे आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो एक सर्कुलर ट्रैक हम निकालेंगे। ओके, दिस मे नॉट बी अ परफेक्ट सर्कल बट यू हैव टू कंसिडर दिस एज अ सर्कल। सो यहाँ पे कहीं तो एक सेंटर रहेगा, दिस इज अ सेंटर, और मान लीजिए कि ए की पोजीशन जो है वो ये यहाँ पे पोजीशन है ए की, ए इज हियर। ओके, एंड बी की जो पोजीशन है, बी इज अहेड ऑफ ए एंड देयर पोजीशन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। मतलब बी जो है वो इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, समझ पकड़ के चलिए। ओके, एंड बी की पोजीशन कहीं तो भी यहाँ पे है, तो ये जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, when A reaches to the point diametrically opposite to his starting point, मतलब यहाँ पे वो शुरू हुआ है, तो इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट जो रहेगा, ये इसका डायमीटर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, सो दिस विल बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट। एंड जब जब ए यहाँ पे पहुंचता है, तब वो यहाँ पे पहुंच के बी को मिलता है। ओके, सो व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के स्पीड का रेशियो क्या है, देखिए। सी, अभी बी ने कितना डिस्टेंस पार किया, डिस्टेंस हम समझ के चलते हैं एंगल के फॉर्म में। कितना एंगल बी ने कवर किया, बी कवर्ड द एंगल ऑफ 150, करेक्ट। एंड सिमिलरली ए कवर्ड द एंगल ऑफ 180, ए ने 180 एंगल कवर किया या फिर इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, और बी ने 150 का कवर किया। ओके, सो विच वन इज फास्टर, ऑब्वियसली ए इज फास्टर। ठीक है, सो अगर हम उनके एंगल का रेशियो ले, सी, ए का एंगल है 180 दैट इज डिस्टेंस, एंड उसका एंगल रहेगा 150, दिस इज अगेन एन एंगल। ओके, सो ये आएगा 6/5, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है एवरीवन। ओके, आई होप यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, इज इट? समझ में आया सब लोगों को, बताइए। ओके एवरीवन, ओके थैंक यू, चलो ठीक है। सो या दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर यूपीएससी सेट 2 पेपर। ठीक है, सो इसी तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक्स अगर हमें पता है तो वी कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी। ओके, सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, एंड दीज आर द ऑल क्वेश्चंस फॉर टुडे। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, तो चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। ओके, बाय बाय, थैंक यू। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। Rahul, please leave the meeting.